there any difficulty regarding the picture and voice, please let me know. Okay, so let's have a recap what we have discussed yesterday. As per your demand, we have started with chemical bonding chapter. And as I stated, it is one of the very important chapter for all the competitive examinations. Either we are appearing for JEE, NEET, or whatever, JIPMER and all, whatever examinations we are appearing for all these examinations, all the competitive examinations. This chapter is very fundamental and very conceptual and must prepare thoroughly. Chemical bonding. When we start with this chapter, there are just 3 to 4 questions or some questions. Number one question, what is chemical bonding? What is bond? What type of bond are there? How bond is formed? And what are the consequences of this bond form? ये क्वेश्चन के आंसर ही इसी चैप्टर के अंदर हम लोगों को मिलता है. मतलब केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज बॉन्ड, बॉन्ड का डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, बॉन्ड के टाइप्स कौन से हैं, बॉन्ड किस तरीके से तैयार होता है, और बॉन्ड तैयार होने के बाद कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, एज वेल एज उसका परिणाम क्या होता है. ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर मिलते हैं, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मिलते हैं. जैसे मैंने बताया कि दो वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉन्डिंग हियर, in our daily routine life even, bonding is very important. And when we comes to the chemistry, chemical bonding is too much important, like bonding. So we have seen bond exists between 2 or more atoms. कल के कड़ी में हमने देखा atoms comes together due to bond factor, due to bond, to form a molecule. Molecules comes together to form a crystal, crystal comes together to form matter, matter comes together to form this world, or this beautiful world is due to the bond phenomena. So how this bond is formed and what are the factors responsible for the bond formation, that is what we discuss here in this chapter. बस इस क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर के अंदर ढूंढते हैं और इसी को सपोर्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चन था. तो कल हमने देखा था कि सबसे पहला क्वेश्चन था कि what is chemical bond? Chemical bond is a force of attraction which holds 2 or more atoms together in a molecule of compound. Is called as a bond. We are saying this is the methane molecule. This methane molecule के अंदर carbon has 4 bonds with 4 hydrogen atoms. So that means this carbon and hydrogen has a force of attraction between this. जिस तरीके से हम लोग मेटल और क्या कहते हैं उसे हम लोग, metal attracts north pole and south pole. That is what, चलो कोई बात नहीं, बाद में आ जाऊंगा उसके ऊपर. So this is a force of attraction. There is a force of attraction between this carbon and hydrogen, and this force of attraction is nothing but you can say bond. और bond जो दिखाई दिया जाता है वो कई सारे अलग अलग तरीके से दिखाए जाते हैं. Yeah, I got it. जिस तरीके से हम लोग मैग्नेट और दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, या फिर एक मैग्नेट दूसरे को अट्रैक्ट करता है, उसी तरीके से एक एटम दूसरे एटम को अट्रैक्ट करता है. और दोनों के बीच में जो फोर्स होता है ये हमें दिखाई नहीं देता है. ओके, ये होता है, दिखाई नहीं देता है, बट तो वो किस तरीके से दिखाई देता है, किस तरीके से हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस तरीके से उसे दिखा सकते हैं, तो दैट्स एक वन ऑफ द वे हमने निकाला है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम यूज करते हैं कि दो एटम के बीच. ऐसा जरूर नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्ड प्रेजेंट होता है. बॉन्ड दुनिया भर में जितने सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर ये बॉन्ड प्रेजेंट होता है, चाहे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक किसी भी टाइप का सब्सटेंस हो, पॉलीमर, बायोमॉलिक्यूल, व्हाटएवर टाइप्स ऑफ सब्सटेंस. किसी भी दो एटम, कोई भी दो एटम इकट्ठा जब आते हैं, दो से ज्यादा एटम जब इकट्ठा आते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है. दैट इज नथिंग बट द केमिकल बॉन्ड. नाउ ये बॉन्ड तैयार क्यों होता है, बॉन्ड कैसे तैयार होता है, और तैयार होने के कारण क्या तैयार होता है, क्या होता है, यही क्वेश्चन है. तो कल हमने इसका आंसर देखा कि व्हाई बॉन्ड इज फॉर्म. एक एग्जांपल है हाइड्रोजन का, एक एग्जांपल मीथेन का. ये दो रीजंस है उसके लिए जो कल देखे हमने. स्टेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एवरीथिंग इज टेंडिंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी. हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, जाना चाहती है. हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है. सो हर एटम की बात करते हैं, हर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो दैट इज गोइंग टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी. तो एक एटम दूसरे एटम के साथ रिएक्ट होने के बाद रिलीज द एनर्जी. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की केस दिया. अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो उसके भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो हम थर्मोडायनामिक्स नाम के चैप्टर में 12th स्टैंडर्ड में जरूर डिस्कस करेंगे. अभी इतना याद रखिए कि ये दो एटम जब इकट्ठा आते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, और जब एनर्जी रिलीज होता है तो दे अटेन द स्टेबिलिटी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स highest energy containing state is an unstable state and lowest energy containing state is called as a stable state.
किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पार्टिकल का ज्यादा एनर्जी वाला जो स्टेट होता है वो अनस्टेबल होता है, और कम एनर्जी कंटेंट वाला जो स्टेट होता है उसे हम लोग स्टेबल स्टेट कहते हैं थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से। तो दो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी अलग होती है, और हाइड्रोजन एटम जब इकट्ठा के मॉलिक्यूल बनता है तो उसकी एनर्जी अलग होती है। तो एटम अलग अलग है, मॉलिक्यूल बनने के बाद इतनी एनर्जी रिलीज होती है, मतलब इसका सिस्टम का एनर्जी, उस मॉलिक्यूल का एनर्जी कम हो जाता है। ये पहला रीजन है। सो स्टेबिलिटी अटेंड की जाती है बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई टेंडिंग टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी, एंड दैट्स व्हाई द रिएक्शन occurs, they comes together, bond is formed and the energy is released। ऐसा एक आंसर उसका आता है थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से। दूसरा आंसर यहाँ पे आ जाता है, that is you can say attend the optic। ये इसी के अंदर हमें डिटेल में डिस्कस करना ही जरूर, बट ये भी बता देता हूँ, जैसे कि हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कई सारे एलिमेंट्स हमारे साथ होते हैं। हम देखते हैं मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, मेटालॉइड्स है, और नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस के लिए 18 ग्रुप एलिमेंट वहां पे रखे हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं। 18 ग्रुप एलिमेंट में हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, आर्गॉन, मतलब नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, सो ऑनवर्ड्स अप टू रेडॉन। हम कई सारे नोबल गैसेस देखते हैं, and these noble gases generally do not take part in a chemical reaction. What's the reason behind that? Why they do not take part in chemical reaction? The reason comes to know that every noble gas has completed 8 electrons in the outermost solid. It's called as octet. And that's why, according to some theories, every element in periodic table, once again, every element in periodic table try to complete 8 electrons in its outermost orbit. Or in order to attain this 8 electrons, it may lose, gain, or share electron, and that is nothing but they attain the nearest inner gas electronic configuration. That is also one of the important reasons because of which the reaction occurs. तो ऐसे एक important answer आता है कि why bond is formed, क्यों bond तैयार होता है, and then molecule तैयार होता है, so onwards हम लोग आगे चलते हैं। That is what we are seeing over here. So this is called why bond is formed. Clear? तो मुझे लगता है यहाँ तक हमने देखा था कि अभी ना हम आगे चलते हैं कि why bond is formed and how bond is formed, basically how bond is formed। इसके बारे में जो अलग अलग थ्योरीज आते हैं उसमें से एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी पुट फॉर द लेविस एंड कोशल। दूसरी थ्योरी है उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तीसरी थ्योरी है उसके अंदर, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी आती है, दैट इज हाइब्रिडेशन थ्योरी, और लास्ट थ्योरी आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सारे थ्योरीज व्हाई बॉन्ड इज फॉर्म एंड हाउ बॉन्ड इज फॉर्म इसी के बारे में एक्सप्लेनेशन देती है। तो चलते हैं हम लोग वन बाय वन सारे थ्योरीज की तरफ, ठीक है। So, अब देखिएगा, when we talk about this how bond is formed, उसके बारे में सबसे पहले जो थ्योरी आती है, that is nothing but we can say electronic theory of valency। Electronic theory of valency, which is put forth by Lewis and Koshel named scientists. So this is Lewis and Koshel. These are the two scientists who put forth this theory. And electronic theory of valency, मतलब Lewis and Koshel, these are the two scientists who are working together, and they try to find out the answer how bond is formed, why bond is formed। उसके बारे में आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी के हिसाब से। उनके हिसाब से हमने देखा हुआ है, उनके हिसाब से देखा हुआ है कि सपोज कोई भी एटम देखते तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हियर इज द न्यूक्लियस, हियर इज द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन दिस शेल्स। सो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, so we can say this is the nucleus। So this nucleus and these are the electrons in shells। now ये अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर 1, 2 और 3 सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे लेविस कोशल थ्योरी क्या कंसीडर करता है? लेविस कोशल थ्योरी कंसीडर करता है कि ये न्यूक्लियस और ये वाले जो अंदर के शेल्स है उन्हें वो कर्नेल कहता है। कर्नेल इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अराउंड के सारे इनर शेल्स except outermost shell are called as kernels according to Lewis Koshel theory, and the remaining is nothing but the outermost shell। so this remains nothing but the outermost shell। so हम already structure of atom में discuss कर चुके हैं कि every structure of atom consists of centrally situated highly dense area known as nucleus consists of protons and neutrons, whereas there are shells and subcells in which electrons exist over there। ये हमने देखा हुआ। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एग्जिस्ट होते हैं। नाउ ये कोशल और लेविस जब स्टडी करते हैं तो ये क्या कंसीडर करते हैं कि ये न्यूक्लियस और बाकी सारे शेल्स को वो कर्नेल कहते हैं, विच इज अ पॉजिटिवली चार्ज। सिर्फ आउटर मोस्ट शेल यहाँ पे वो कंसीडर नहीं करते, उसी के अंदर उसको
एक सेक्शन लेते हैं आउटर मोस्ट शेल कहते हैं. सो दो पार्ट्स में एटम को डिवाइड करते हैं. आउटर मोस्ट शेल छोड़ दो, बाकी सारा कर्नेल है न्यूक्लियस के साथ, बाकी सारे रिमेनिंग इनर शेल्स कर्नेल, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, ऐसा वो मानते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस थिंग, तो अभी आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, ये किसी भी एटम में होता है. और ये एटम जब दूसरे किसी एटम के साथ रिएक्ट होता है तब ये आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करता है. ये आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है. 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए ईच में लूज इलेक्ट्रॉन, ईच में गेन इलेक्ट्रॉन और ईच में शेयर इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा होता है. सो वी कैन से एंड दिस ये इस तरीका सबसे इंपॉर्टेंट आउटलुक इज नथिंग बट ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल. सो लेविस क्वेश्चन थ्योरी के ये थ्योरी है, ये थीसिस है, और इस थीसिस के अंदर काफी सारे कंसीडरेशंस आते हैं, काफी सारी चीजें आती है, और इसी का आउटपुट होता है. मतलब जैसे कि हम लोग बहुत बड़ा स्टोरी छोटा करके बताते हैं, या फिर मानो एक हम बहुत बार 3 घंटे का एक पिक्चर फिल्म देख के आते हैं, मूवी देख के आते हैं, और हमारे दोस्त को जब सम अप करते हैं तो बस हम 5-10 मिनट में उस पिक्चर का स्टोरी बताते हैं. जो पिक्चर हमने 3 घंटे में देखा था उसका स्टोरी हम लोग जस्ट 5 मिनट में बता सकते हैं. कॉम्प्रिहेंशन है. उसी तरीके से होता है कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंस एक अप्रोच है, एक बहुत बड़ा थीसिस है लेविस क्वेश्चन का, और उसी का बेस्ट आउटकम है दैट इज ऑक्टेट. और ये जैसे मैंने बताया कि ऑल दीज आर द कंसीडरेशंस, या आउटर मोस्ट शेल अगर छोड़ देंगे तो बाकी सारा उसके अंदर जो आता है दैट इज न्यूक्लियस एंड ऑल इनर शेल्स आर कंसीडर्ड एज कर्नेल्स एंड दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, that is positively charged particles. So whatever the electrons present in the outermost shell, these electrons are considered. How many electrons are present in the outermost shell? These electrons may be lost or may be gained or may be shared in order to complete 8 electrons in the outermost shell. So that happens. So this is the octet rule. So according to octet rule, during a chemical formation, electrons can be gained, electrons can be shared, or electrons can be lost. Electron can be lost, मतलब loss, gain or share. Okay. So electron can be lost. ये word मैं यहाँ से put करता हूँ. Electron can be lost, gain or shared. So electron can be lost, gain or shared during a chemical formation to complete nearest inner gas electronic configuration. Nearest inner gas electronic configuration. Nearest inner gas electronic configuration. Nearest inner gas electronic configuration का मतलब क्या होता है? देखिए हमारे लाइफ में भी हमारे कुछ आइडियल्स होते हैं, चाहे हमारा डैड, मॉम हो सकता है, भाई हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, या कोई किसी का आइडियल सचिन तेंदुलकर हो सकता है, किसी कोई बिजनेसमैन हो सकता है, किसी कोई लीडर हो सकता है, और उस आइडियल की तरफ बनने का हम कोशिश करते हैं. उसी तरीके से हर एटम उसके नियर बाय का जो नोबल गैस होता है उसके जैसे बनने की कोशिश करता है. से हाइड्रोजन हेलियम के जैसे बनने की कोशिश करता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये नियॉन के जैसे बनने की कोशिश करते हैं, कैल्शियम क्लोरीन ये आर्गन के जैसे बनने की कोशिश करते हैं. सो ऑन बिट मतलब उसके नियर बाय वाला जो है नोबल गैस उसके जैसे बनने की कोशिश करते हैं. ऐसा इस तरीके का कहना है दैट से इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंस व्हिच पुट फॉर बाय लेविस एंड कौशल, उन्होंने ये थ्योरी हमारे सामने रखा हुआ है. सो दैट इज उसका ऑक्टेट रूल. आपके एग्जाम में जो पूछेंगे वो सीधा ऑक्टेट रूल पूछेंगे. व्हाट इज ऑक्टेट रूल? तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, atoms may lose, मतलब they may lose electrons, they may gain electrons, or they may share electrons in order to complete 8 electrons in their outermost orbit. In order to complete 8 electrons in their outermost orbit, as like nearest inner gas electronic configuration. As like nearest inner gas electronic configuration. That is what we can say regarding the octet rule. So hope everyone got the octet rule. So according to octet rule, during a chemical formation or during a chemical reaction, every atom may lose, either lose करेगा, either gain करेगा, or either electron share करेगा, but it will try to complete 8 electrons in its outermost orbit, as like the nearest inner gas electronic configuration. उसके नजदीक वाला जो नोबल गैस है उसके जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कंप्लीट करने की कोशिश करेगा. दैट इज व्हाट वी कैन से हियर ऑक्टेट रूल ये कहता है. क्लियर विद दिस? So based on this octet rule, we can have a number of different types of bond or different types of, or many examples can be given for this octet rule. कई सारे examples octet rule के दिए जा सकते हैं. Clear? So hope everyone got the octet rule what we have seen over here. So everyone got this octet rule. ठीक है? तो अभी octet rule के आधार पर जैसे मैंने बताया कि there are types of bond, तो उसमें से 2 बॉन्ड आते हैं जो octet rule के आधार पर एक्सप्लेन किए जा सकते हैं. तो पहला बॉन्ड जो देखते हैं हम लोग that is called as ionic bond. So let's move to आयनिक बॉन्ड. तो देखिए आप एक हम डिस्कस करेंगे
you can say ionic bond. अब दूसरा डिस्कस करेंगे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड, ये दो बॉन्ड आते हैं, there is ionic bond and there is a covalent bond. जैसे मैंने बताया कि there are many types of bonds. कल हमने किया there are many types of bond, but octet rule के आधार पर ionic bond and covalent bond दो आते हैं. अलग-अलग theory ने अलग-अलग एडिशंस किए. तो bonds के भी टाइप जो आते हैं वो अलग-अलग theory के हिसाब से आते हैं. So octet rule के हिसाब से there are only two bonds, ionic bond and covalent bond. तो कैसे होते हैं वो हम देखते हैं कि what is this ionic bond, what is this covalent bond. So this is the part of, you can say, octet rule. ये octet rule का ही part है, ठीक है. So we are talking about ionic bond. देखते हैं हम लोग कि ionic bond का mechanism देखते हैं और ionic bond का definition भी देखते हैं और कुछ molecule का formation भी देखते हैं. One example, best example, that is formation of sodium chloride, NaCl. NaCl, simple reaction NaCl, that is the part of ionic bond. अभी देखिए, sodium reacts with chlorine to form NaCl. So simple reaction. Sodium reacts with chlorine to form NaCl. It's very simple reaction. But this formation of NaCl can be explained on the basis of this octet rule. तो अब देखिएगा, sodium जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं हम लोग, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं. सोडियम हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11. So this is 1s2, 2s2, 2p6 and this is 3s1. This is the electronic configuration of sodium. तो सोडियम की शेल देखिए, this is first cell, this is second cell and this is third cell. तो लेविस क्वेश्चन थ्योरी के हिसाब से this is the outermost cell because third cell, second cell, first cell and nucleus called as a kernel and this is the outermost cell 3s1. तो सोडियम के outermost में से एक ही इलेक्ट्रॉन है. At the same time हम क्लोरीन की बात करते हैं. So there is a chlorine having atomic number 7. उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. ओके, 2 2 6 10 और ये 7 17. This is इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो ऐसे इसका भी आउटरमोस्ट कौन सा है? थर्ड से. अभी ये वाले 3s और 3p ये उसके सब शेल्स और ऑर्बिटल्स की बात करते हैं हम. But shells तो उसका थर्ड ही है, थर्ड शेल N, men shell. S and P are called as orbitals or subcells, we can say. तो आप देखिए ना, सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन क्यों होती है और कैसे होती है, ये दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. सोडियम के आउटरमोस्ट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन. ऑक्टेट रूल का कहना ये है, every atom try to complete 8 electrons in outermost orbit. सोडियम को आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीट करने हैं तो उसको और 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 चाहिए, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है. सो इट नीड्स 7 इलेक्ट्रॉन्स. और क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के पास देखिए कि आउटरमोस्ट में यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल की बात करते हैं, थर्ड शेल, तो ये 2 और ये 7. तो सोडियम की बात की तो 1 इलेक्ट्रॉन है और हम क्लोरीन की बात करेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन्स. अभी सोडियम को इलेक्ट्रॉन चाहिए 7, तब जाके उसके पास हो जाएंगे 8 और इसको चाहिए 1, तब जाके हो जाएंगे 8. दोनों के 8 कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, क्लोरीन में 7 है, 1 मिलेगा तो 8 हो जाएगा और सोडियम में 1 ही है, 7 चाहिए, 8 मिल जाएगा. अभी क्या इजी कौन सा है, इजी कौन सा है ना. मतलब हमें सिंपल सी बात देखते हैं कि सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन मिलना इजी है या क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिलना इजी है. तो सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है कि क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसको इजीली कहीं ना कहीं मिल जाएगा. सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसको डिफिकल्टी मिलता है ना, ऐसा. सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, तो इसके अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से आता है, सोडियम प्रीफर टू लूज दिस इलेक्ट्रॉन. 7 लेने के बजाय वो 1 छोड़ देता है क्लोरीन को. अगर ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो आप देखिए, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक सेकंड शेल है जिसके अंदर 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो दिस इज द म्यूचुअल combination between them. Sodium prefer to lose electron, chlorine prefer to go in get 1 electron. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, this is donated to chlorine. ये क्लोरीन को दिया जाता है. हम रिएक्शन ऐसा लिख सकते हैं वापस, सोडियम प्लस क्लोरीन. आप देखिएगा इसके अंदर होता क्या है कि this chlorine has 2, 8 and 1 electrons and इसके अंदर देखिए तो 2, 8 and 7 electrons. इस तरीके से. So होता क्या है, this sodium prefers to give 1 electron to this chlorine. मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया जाता है और जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया जाता है, here it forms sodium plus. सोडियम का इलेक्ट्रॉन चला गया. कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चला गया तो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओनली 2 and 8.
ये आपने 10th के स्कूल में देखा था इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 वगैरह। तो 2-8-1 तो 2-8 यहाँ पे आपको मिल जाता है जिसके अंदर उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। क्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है और दैट्स व्हाई क्लोरीन डेवलप्स माइनस चार्ज। कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लेता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये इसके अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से 2 8 एंड 7 के अंदर एक ऐड हुआ तो इट बिकम्स 8। नाउ दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द सोडियम प्लस एंड Cl माइनस। सो सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फर्क है देखिए, दिस इज सोडियम न्यूट्रल एटम एंड दिस इज सोडियम आयन, दिस इज क्लोरीन न्यूट्रल एटम एंड दिस इज क्लोरीन आयन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, क्लोरीन ने ले लिया, बन जाए सोडियम हैज अ पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन हैज अ नेगेटिव चार्ज। और हम अच्छी तरह जानते हैं there is a electrostatic force of attraction, इसका एक important concept है electrostatic force of attraction। क्या है concept? Opposite charges has the attraction and like charges has the repulsion. This is the positive charge, this is the negative charge, that's why there is a attraction between them and it forms NaCl. It forms NaCl. NaCl form होता है। So this NaCl molecule is formed here. There lies a force of attraction between this positively charged sodium atom and negative charged chlorine atom. So due to this electrostatic force of attraction, these oppositely charged ions are held together. These oppositely charged ions are held together. And this is called as ionic bond. This is called as ionic bond. In case of ionic bond, one of the atom loses electron to another atom. So there is a loss of electron, here is the gain of electron, and mutually they develop a positive and negative charges. And these oppositely charged ions are held together due to electrostatic force of attraction. इलेक्ट्रोस्टैटिक की फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स के चैप्टर का नाम भी है, वहां पे आप देखेंगे किसी भी दो अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है और लाइक चार्जेस में रिपल्शन होता है। So that's why sodium plus is held together with negative chlorine minus and it forms the NaCl. NaCl यहाँ पे तैयार होता है, this molecule is formed. इस molecule में सोडियम क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है, this is called as ionic bond. So ionic bond is formed by loss or gain of electron and oppositely charged ions are held together due to electrostatic force of attraction. This is ionic bond. Also everyone got it? The formation of NaCl, sodium chloride molecule, is on the basis of octet rule and is nothing but the ionic bond, can be explained on the basis of ionic bond. So either you can have the screenshot or you can just write down the things over here. Better to have the screenshot. या फिर आप book में भी है, लेकिन I tried my level best to simplify the things here in my way. So this is formation of NaCl. उसी तरीके से हम लोग बाकी किसी भी मॉलिक्यूल का हम लोग फॉर्मेशन उसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। There are many molecules, especially the salt molecule, जो हमारे डेली रूटीन लाइफ में बहुत बार हम लोग देखते हैं, उनका फॉर्मेशन हम लोग इसी तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। So let's have the formation of calcium chloride molecule. So please have a screenshot of this one. We'll move towards calcium chloride molecule formation. Okay, got it everyone? So let's move on. Formation of calcium chloride molecule. Second example. Calcium chloride molecule. CaCl2. Here, CaCl2. CaCl2 calcium chloride molecule. Okay. कोई किसी को डाउट आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो via text or you can unmute your sound and let me know. So formation of calcium chloride CaCl2 molecule. Simple reaction Ca plus Cl2 produces CaCl, calcium chloride molecule तैयार होता है। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना जरूरी है। Calcium having atomic number 20, so it has the electronic configuration that is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, or 4s2. This is the electronic configuration of calcium. Calcium has outermost s 4s cell, and that's why it has 2 electrons in the outermost. It needs 6 electrons to complete 8 electrons in the outermost orbit. When we talk about the chlorine, chlorine has 17 electron configuration: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, or 3p5. This is the electron configuration. It has third outermost shell, and this they can make it has
2 or 5 use 7 electrons and use 1 electron to form 8 electrons in the outermost orbit. So this is what we can say. It has 7 electrons here in this outermost shell, and it has only 2 electrons in the outermost shell. So again, what happens here? एक क्लोरीन के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ पे कैल्शियम के आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, नीड 6 इलेक्ट्रॉन. तो अगेन कैल्शियम नीड्स 6 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. तो कोई भी एटम ऐसा नहीं होगा जो 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा. 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना, गेन करना इजी बात है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 50-50 होता है. बट हियर 6 नंबर इज अ बिग नंबर, सो एनी एटम वोंट लूज द 6 इलेक्ट्रॉन्स. बेटर दिस कैल्शियम प्रीफर टू लूज दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स. कैल्शियम अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके आउटरमोस्ट में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं. तो जनरली मेटल हैज द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन. तो कैल्शियम ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा. अभी क्लोरीन का एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और कैल्शियम तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है. तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, क्लोरीन के भी 2 एटम आ जाते हैं टू रिसीव दिस इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के लिए क्लोरीन के भी उतने एटम आ जाते हैं. So what happens here? See, this is chlorine which has 2, 8 and 7, plus this is calcium which has 2, 8 and 2, like this, plus this is another chlorine which is having 2, 8 and 7. कैल्शियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे देता है, एंड देन यहाँ पे क्या होगा देखिए, दिस इज Cl minus plus this is calcium plus Cl minus. So what happens here? It will form a bond, like you can say calcium chloride. मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि CaCl and Cl, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं CaCl. इसमें भी बॉन्ड तैयार होता है, क्योंकि कैल्शियम बाय लूजिंग 2 electrons, it develops +2 charge, and chlorine gaining 1 electron develops -1 charge. So in order to neutralize 2 charges, +2 charge on the calcium, it needs 2 negative charged ions. So this calcium resolves 1 and this calcium resolves 1 charge. So it neutralizes. In order to neutralize calcium +2 charge, we need 2 chlorine atoms. So how is the electronic configuration between this, and finally the calcium chloride is formed? Again, this must be ionic bond. Again, this must be ionic bond. The reason behind that, why it is ionic bond? Because इसके नाम देखते हैं कि this is chlorine which has negative charge, this chlorine negative charge, and calcium has the positive charge. So these ions are held together due to electrostatic force of attraction. These ions are held together due to electrostatic force of attraction, and that's why calcium chloride is formed. उसी कारण से calcium chloride यहाँ पे तैयार हो जाता है, form हो जाता है. So this is what we can have, this formation of calcium chloride, and this is the example of ionic bond. And ionic bond is a type of bond according to octet rule. So here, when it loses 4, octet is completed. When it gains 1, octet is completed. Both atoms completed octets, and that's why this is the mutual understanding. And this is according to the octet rule. So octet rule के theory के हिसाब से इस तरीके से तैयार होते हैं. This is what we can say ionic bond. Clear with this? Is there any doubt to anyone how the bond formation occurs? So here in this molecules, खास करके calcium chloride या sodium chloride किस तरीके से होता है, ये हम यहाँ पे देखते हैं. Clear? Okay. And now इस तरीके से जो सब्सटेंसेस तैयार होते हैं, ये सारे सब्सटेंसेस को आयोनिक सॉलिड्स कहा जाता है. These substances are called as ionic solids. अभी ये बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगा और कैसे होगा, इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर भी कुछ चीजें जरूरी है. मतलब हियर मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्वड इसके अंदर की. आयोनिक बॉन्ड के साथ जो सब्सटेंसेस बनते हैं उन्हें कहा जाता है आयोनिक सॉलिड्स. सो दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज आयोनिक सॉलिड्स. आयोनिक सॉलिड्स. और ये जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं, कौन से एटम के बीच में रिएक्शन होगा और कौन से एटम के बीच में रिएक्शन नहीं होगा, that is decided by the one of the factor called as enthalpy. So there is one of the concept enthalpy. अभी देखिए यहाँ पे आपके बुक के हिसाब से जरूर एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट है, और आयोनिक सॉलिड्स एंड एंथैल्पी आर रिलेटेड विद ईच अदर. मतलब ये दोनों के बीच में बॉन्ड क्यों तैयार होता है, कैल्शियम क्लोराइड के बीच में ही रिएक्शन क्यों होता है, उसके कुछ रीजंस है. And these reasons are related with the enthalpy. Enthalpy is nothing but the form of energy. It is a form of heat. Energy का फॉर्म है, हीट का फॉर्म है. वो भी हम डिस्कस करते हैं कि क्या है. लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा आपको कि हमें 12th स्टैंडर्ड में थर्मोडायनामिक करके चैप्टर है जो सिर्फ इसी के साथ जुड़ा हुआ है, एंथैल्पी के साथ जुड़ा हुआ है. उस चैप्टर का मेन थीम ही एंथैल्पी है, दैट इज हीट, एनर्जी. तो वहां पे ये टॉपिक समझने के बाद ये और अच्छी तरह समझ में जाएगा. ये सब वहां पे डिस्कस करना ही करना है, लेकिन है बुक के अंदर सीक्वेंस में, तो थोड़ा सा उसी को हम लोग ले लेते हैं
व्हाट इज दिस आयोनिक सॉलिड्स एंड ऑल, ठीक है। सो चलते हैं हम लोग, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है नहीं खास करके, बट when we talk about GE or NEET examinations, there it is very important. What is this enthalpy? So जैसे मैंने बताया कि when we talk about the ionic solids, इसके अंदर जो आता है that is nothing but the enthalpy. Enthalpy is nothing but heat, or you can say energy. Heat is also one of the form of energy. Enthalpy is also one of the form of energy. थर्मोडायनामिक्स में एनर्जी को एंथैल्पी कहा जाता है, हीट एनर्जी को एंथैल्पी कहा जाता है। हीट और एनर्जी में जरूर डिफरेंस है, एंथैल्पी में जरूर डिफरेंस है, वो थर्मोडायनामिक्स में मिलता है आपको। मतलब टॉकेटिव लैंग्वेज में हम लोग एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट, हीट इज इक्वल टू एंथैल्पी ले सकते हैं, बट साइंटिफिक लैंग्वेज में थर्मोडायनामिक्स में एंथैल्पी का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, हीट का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज़ उसके अंदर कुछ एडिशंस हो जाते हैं, कुछ चीजों के एडिशंस होते हैं, डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जरूर देखेंगे हम लोग। बट यहाँ पे एंथैल्पी की बात ये आती है, यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर एंथैल्पी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन अ केमिकल रिएक्शन और अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब इन अ केमिकल रिएक्शन। खास करके आप देखिएगा कि ये जो NaCl है, सोडियम प्लस क्लोरीन टू फॉर्म NaCl, ये NaCl जब तैयार होता है, NaCl खास करके सॉलिड फॉर्मेट में जब NaCl तैयार होता है, उसका जो एंथैल्पी है, दिस एंथैल्पी इज नोटेड बाय डेल्टा H। एंथैल्पी किसे दिया जाता है? डेल्टा H। सी एंथैल्पी इज नोटेड बाय H। एंथैल्पी किसे दिखाया जाता है? H से दिखाया जाता है। नाउ delta H is a change in enthalpy. Delta का मीनिंग है change in enthalpy. Change in enthalpy is minus 788 किलोजूल, इतना एनर्जी, किलोजूल इतना एनर्जी। अब देखिए सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट होकर और सोडियम क्लोराइड तैयार होता है सॉलिड फेज में, तब जाके 788 किलोजूल इतना एनर्जी रिलीज होता है। इट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। और उसके अंदर होता क्या है, ये रिएक्शन में काफी सारे स्टेजेस और काफी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है। ये जो एंथैल्पी है ना, एंथैल्पी इज हीट, आप ऐसे भी कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्सॉर्ब इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज एंथैल्पी और कॉल्ड एज चेंज इन एंथैल्पी। अब हम ये आप स्कूल लाइफ से जानते हो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज एब्सॉर्ब, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज रिलीज्ड, है ना। तो यहाँ पे माइनस है, मतलब दिस इज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इस रिएक्शन में इतना हीट बाहर आता है। लेकिन सोडियम क्लोराइड तैयार होते होते बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। सबसे पहला क्या होता है, दिस इज अ सोडियम व्हिच इज इन चलो मानो सॉलिड फेज होता है, उसे हमें सोडियम को पहला लिक्विड फेज में भेजना पड़ता है, फिर सोडियम को गैसियस फेज में भेजना पड़ता है, फिर सोडियम गोज इनटू गैसियस फेज। ये गैसियस वाला मतलब दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सोडियम टू लिक्विड, this is liquid to solid, this is the second phase. Then this sodium which is in gaseous form lose electron to form Na plus gaseous, and this electron is lost, and this is called as again change in enthalpy, solid to liquid enthalpy यहाँ पे भी आता है, that is you can say liquid to gaseous, यहाँ पे भी enthalpy आ जाता है। so हर चीज में मतलब किसी भी सॉलिड को लिक्विड में लेके जाना है तो वहां पे एंथैल्पी की जरूरत है, लिक्विड को गैसेस में जाके जाना है तो वहां पे एंथैल्पी चेंज होता है, मतलब हीट चेंज होता है। गैसियस स्टेट में से इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो दैट इज यू कैन से एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन कहा जाता है। दिस इज डेल्टा H और दिस इज I फॉर एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो उसका है तो कैटायन में कन्वर्जन, जनरली कैटायन में कन्वर्जन हो जाता है, और दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। ये सोडियम की केस में चेंजेस होते हैं, क्लोरीन के केस में यही चेंजेस होते हैं। दिस इज द क्लोरीन एटम Cl2, पहला Cl2 ब्रेक होता है, Cl प्लस Cl होता है, ओके, दो Cl इकट्ठा आता है होते हैं, फिर एक Cl गैसियस स्टेट में आता है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो फॉर्म Cl माइनस। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो दिस हैपेंस, all these changes happens regarding the sodium, all these changes happen regarding the chlorine। तो सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट होने के पहले इतने सारे चेंजेस करता है, इतने सारे स्टेजेस में आता है। क्लोरीन सोडियम के साथ रिएक्ट होने के पहले इतने सारे चेंजेस करता है, इस स्टेजेस में आता है। तो अलग अलग स्टेज में अलग अलग एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन है, हियर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, हियर एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। इतने सारे एंथैल्पी, मतलब हर स्टेज में हीट रिलीज होता है, दैट इज एंथैल्पी रिलीज होता है। और फाइनली फिर ये दोनों क्लोरीन, ये सोडियम क्लोरीन इकट्ठा आते हैं, दैट इज सोडियम प्लस दिस क्लोरीन माइनस टू फॉर्म NaCl। ये भी गैसियस स्टेज में होता है, फिर गैसियस का वो NaCl लिक्विड फेज में जाता है, और फिर लिक्विड फेज का NaCl सॉलिड फेज में आता है, सॉलिड फेज।
आप देखिए फाइनली ये सोडियम क्लोराइड सॉलिड फेज में होता है, जो हमारे घर के अंदर नमक सॉलिड फेज में आता है। तो हम ये सिंपल रिएक्शन देते हैं, सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स यू NaCl, और ये इसके अंदर के हीट रिलीज होता है। बट अगर माइक्रो लेवल पे देखते हैं तो इतने सारे छोटे छोटे चेंजेस उसके अंदर होते हैं, और फाइनली हम लोगों को सोडियम क्लोराइड मिल जाता है, जो कि सॉलिड फेज में आता है। और हर चेंजेस का जो एंथैल्पी अलग अलग है, और फाइनल एंथैल्पी इतना है, जो एक्चुअली बहुत ज्यादा है, जो प्रैक्टिकली जो रिलीज होता है एनर्जी उससे बहुत ज्यादा है। तो उसके अंदर और एक एंथैल्पी आ जाता है, दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी, और एक एंथैल्पी आता है दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। जिस तरीके से हमने देखा, दिस इज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। कोई भी एटम जब आयन में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम जो हीट लगता है जरूरी होता है, उसे कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो एनायन में कन्वर्ट होता है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हियर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया था तो एनर्जी रिलीज हो जाती है। ओके, तो दिस इज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एनर्जी रिलीज होती है, और इलेक्ट्रॉन जब छोड़ा जाता है एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। तो जनरली ये पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। और उसके अलावा लैटिस एंथैल्पी होती है। अभी लैटिस क्या होता है? लैटिस क्या होता है? लैटिस इज अ क्रिस्टल, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सोडियम की बात करेंगे हम लोग, तो सोडियम का स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है सोडियम का। सोडियम का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखिएगा आप लोग। तो थोड़ा सा स्पीड में डायग्राम दिखाता हूँ मैं। अब देखिएगा, ये दिस इज लैटिस। मतलब ये जो क्रिस्टल की बात करते हैं, हमारे घर के अंदर शुगर होता है, हमारे घर के अंदर नमक होता है, उसके क्रिस्टल दिखाए। और ये सारे क्रिस्टल के स्ट्रक्चर है, वो भी 12th स्टैंडर्ड में देखेंगे हम लोग, सॉलिड स्टेट चैप्टर में, पहला चैप्टर हमारा, कि कौन से टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होता है, फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, फेस सेंटर क्यूबिक, जिसके अंदर देखिए यहाँ पे देखेंगे तो छोटा सा पार्ट देखेंगे, ये अगर क्लोरीन है, यहाँ पे सोडियम होता है। इसके अल्टरनेट में यहाँ पे जो देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्लोरीन होता है, तो यहाँ पे सोडियम आना है, यहाँ पे सोडियम आना है, यहाँ पे सोडियम आना है, तो यहाँ पे क्लोरीन आना है, लाइक दिस वन। हियर इज द क्लोरीन, यहाँ पे सोडियम, क्लोरीन, सोडियम, यहाँ पे सोडियम, क्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ पे सोडियम, क्लोरीन, सोडियम, लाइक दिस वन। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब एवरी क्लोरीन इज सराउंडेड बाय सोडियम, और एवरी सोडियम इज सराउंडेड बाय क्लोरीन। कोई भी देखिए, ये वाला पार्ट देखिए, दिस इज नथिंग बट यू कैन से क्लोरीन, और दिस इज सोडियम। तो क्लोरीन के अराउंड में सोडियम, 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 सोडियम। क्लोरीन इज बॉन्डेड टू सोडियम इन ऑल द डायरेक्शन, और एवरी सोडियम, हम ये सोडियम की बात करें, दिस सोडियम इज सराउंडेड बाय क्लोरीन, सब जगह क्लोरीन से होता है, एंड दिस गिव्स अ फेस क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये जो क्रिस्टल तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। सो वी कैन से three dimensional arrangement of the particles, three dimensional, x y z axis. It has x axis, y axis and z axis. दुनिया में हर सब्सटेंस 3D होता है, जिसको लेंथ ब्रेड्थ हाइट होता है। सो इस तरीके से थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है, पार्टिकल की जो अरेंजमेंट होती है, उसे क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। तो जनरली हम जब डेली लाइफ बोलते हैं तो क्रिस्टल की बात करते हैं, बट इस क्रिस्टल के शेप्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। ये हम सॉलिड स्टेट टाइप के चैप्टर में देखेंगे, क्रिस्टल के जितने सारे टाइप्स होते हैं, ऑलमोस्ट 14 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो हम देखेंगे। तो उसमें से ये वन ऑफ द टाइप है, एंड दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। तो जब सोडियम क्लोराइड तैयार होता है सॉलिड फेज में, तो किसी ना किसी क्रिस्टल के फॉर्म में, जो 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स के, उसमें से एक फॉर्म में आ जाता है। दैट इज थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ, अभी दिस इज द मॉलिक्यूल, सी NaCl इज द मॉलिक्यूल, NaCl इज द मॉलिक्यूल। बट ये जो डायग्राम दिखाता है, इसके अंदर देखिए ना कितना सोडियम है, कितने सोडियम, 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 कितने क्लोरीन, बहुत सारे क्लोरीन, एंड ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। दिस इज लैटिस, दिस इज द क्रिस्टल लैटिस ऑफ सोडियम। और ये जब बनता है तो कई सारे मॉलिक्यूल इकट्ठा आते हैं, और उसके अंदर भी एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। ये अगर हमें मेल्ट करना है तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, ये मेल्ट करना है तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। सो जनरली मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वन, किसी भी सब्सटेंस के बारे में आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होना है, और ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होना है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसमें सबसे ज्यादा होगा, वही एटम इकट्ठा के रिएक्ट होने के चांसेस होते हैं। मतलब कौन सा आयोनिक सॉलिड तैयार होगा और कहाँ पे आयोनिक बॉन्ड तैयार होगा, इसके पीछे ये रीजंस आते हैं।
wherever the ionic bond enthalpy or ionic enthalpy is less and electron gain enthalpy is higher, then there are the chances to form, or between these atoms there are the chances to form molecules like this one. And उसके अंदर इतने सारे एनर्जी के साथ साथ लैटिस एंथैल्पी आता है. लैटिस इज लाइक दिस वन. थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टिकल, स्ट्रक्चर और थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस. ये क्रिस्टल बनने के लिए भी एनर्जी रिलीज होती है, और ये क्रिस्टल अगर ब्रेक करना है तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है. दैट इज एंथैल्पी. सब मिलके ये एनर्जी रिलीज होती है. एंड दिस इज यू कैन से आयनिक कंपाउंड. इस तरीके से आयनिक कंपाउंड तैयार होते हैं. दैट इज ऑक्टेट. एग्जाम ओरिएंटेड ही मैं बताऊंगा आपको. आपको ऑक्टेट याद रखना है. आयनिक बॉन्ड के एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड याद रखते हैं, और कल देखेंगे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट कंपाउंड्स. टिल देन, थैंक यू मच, बाय बाय, सी यू टुमारो.